So in this video we are going to discuss the subjective part of half yearly paper held on 1st October 2020. So let's start with the very first question, that is, find the value of t such that slope of the line passing through these 2 points is 3. तो हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है such that slope of the line passing through these 2 points is 3, and we know that slope of the line passing through the 2 points x1 y1 and x2 y2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1, and slope is given as 3. This is t minus 4 upon minus 3. Simplify करा we will get minus 9 equals to t minus 4. ये 4 की साइड चेंज करोगे तो we will get the value of t as minus 5. Now the next question is, कहता the longest side x of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeters. Then first part is form the inequalities. Second part है find the minimum length of the shortest side. तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, फॉर्म द इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी जनरेट करने के लिए आपको चाहिए कंडीशन, एंड द कंडीशन इज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर. So the condition is perimeter of the triangle is at least means कम से कम 61, means या तो greater equal to 61 or greater than 61. This is the condition, and we know that perimeter is sum of all the sides of a triangle. तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड चाहिए. longest side x, तो longest side we are given, longest side is x, which is 3 times the shortest side. longest side x है which is 3 times the shortest, तो shortest side हुई x by 3 and third side is 2 centimeters shorter than the longest, तो third side is x minus 2. तो तीनों sides आपके पास present है. Now the condition is perimeter, that is sum of all the sides, plus x minus 2 greater than equals to 61. वैसे तो आपके पास इनइक्वालिटी जनरेट हो गई, बट आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो. x वाली टर्म्स क्लब कर लो, LCM लेते ही विल गेट 3x और इधर भी 3x, so you will get 7x by 3 minus 2 greater than equals to 61. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास रेडी है, इनइक्वालिटी जनरेट हो गई. नाउ द सेकंड पार्ट इज फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज x by 3. तो आपको x by 3 की मिनिमम वैल्यू चाहिए. एंड अगर आप ध्यान दो, इनइक्वालिटी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम इसी को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो 7x by 3, एक काम करते हैं, add 2 on both sides, तो you will get 7x by 3 greater than equals to 63. हमें x by 3 चाहिए, divide both sides by 7, तो we will get x by 3 greater than equals to 9. तो it means x by 3 की वैल्यू या तो 9 के बराबर है या 9 से बड़ी है. तो it means minimum value of x by 3 is 9. So finally minimum length of the shortest side is 9. Next question is, कहता in an AP if p as a term is q and q as a term is p, where p is not equal to q, find the first term, the common difference and the rth term of an AP. तो देखो
पीएच टर्म आपको गिवन है, तो एपी की कोई भी टर्म लिखने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी में मान लेता हूं कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं कैपिटल डी। तो पीएच टर्म विल बी ए प्लस p minus 1 into d and which is given as q. Q of the term is p, that is a plus q minus 1 into d is given as p. तो आपको फर्स्ट टर्म भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल D। कैसे? एक काम करते हैं, A के कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो A कैंसिल आउट हुआ। यहां से अगर आप ध्यान दो, इन दोनों में से D विल बी कॉमन, तो बचा क्या आपके पास p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू यहां से आ गया q माइनस p, तो ये 1 कैंसिल आउट हुआ। यू विल गेट p माइनस q इंटू डी इक्वल्स टू, ध्यान से इधर p माइनस q है तो इधर q माइनस p, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, वी विल गेट p माइनस q एंड इन फैक्ट वी आर गिवन दैट p इज नॉट इक्वल टू q। सिंस p इज नॉट इक्वल टू q, तो ये जो फैक्टर है दिस इज नॉन जीरो, नॉन जीरो फैक्टर है, इसीलिए कैंसिलेशन अलाउड है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास d की वैल्यू आ गई -1, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया -1 एंड वंस d की वैल्यू मिल गई, put the value of d in either of the two equations। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो a plus p minus 1 into -1 is equals to q। तो यहां से a की वैल्यू भी आ गई। ये टर्म, ये पूरी टर्म है नेगेटिव, साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस p minus 1, तो a की वैल्यू आ गई q plus p minus 1। तो फर्स्ट टर्म इज q plus p minus 1 and finally we have to find rth term of an AP. Rth term is a plus r minus 1 into d। a की वैल्यू पुट कर दो, q plus p minus 1 plus r minus 1 into d की वैल्यू अभी अभी फाइंड करी, दैट इज -1। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट p q plus p minus 1 माइनस r, साथ में आया +1, ये 1 कैंसिल आउट हुआ। Finally, the answer is q plus p minus r. So, r of the term is q plus p minus r. The next question is, can I find the discriminant and solve the quadratic equation less? तो discriminant find करना है। discriminant होता क्या है? discriminant is b square minus 4ac. b is -4 स्क्वायर, -4a की जगह आया 3 इंटू c की जगह आया 20/3। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करा ये कैंसिल आउट हुआ, तो यू विल गेट 16 माइनस 80 विच इज -64। और डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया। अब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी करना है। वी नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल्स टू -b plus minus root of b square minus 4ac which is discriminant, that is -64 by 2 times a, that is 3। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, I can write this as root of 64 into root of -1। तो after simplification we will get 4 plus minus root of 64 is 8 and root of -1 is iota by 6। और जैसे ही कॉमन फैक्टर निकाल के सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर 2 plus minus 4 iota by 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if p equals to this, find the value of this expression in the simplified form। पहली ऑब्जर्वेशन, p एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। मीन्स यू हैव टू राइट this expression in the form of a plus b iota। For that p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो you will get 1 plus p की जगह पे cos theta plus iota sin theta upon 1
ध्यान से बाहर माइनस है तो साइंस विल चेंज, माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. Now in order to write this expression in a plus b iota form, तो मैं रियल टर्म्स अलग कर रहा हूं एंड आयोटा वाली टर्म सेपरेट, रियल टर्म्स अलग, आयोटा वाली टर्म अलग. इज दैट क्लियर? a plus b iota फॉर्म में लिखने के लिए I will rationalize the denominator. For that, multiply by 1 minus cos theta plus iota sin theta and divide by the same expression. हाँ जी. अब अगर आप न्यूमरेटर में ध्यान दो, this is a plus b iota into c plus d iota, that is multiplication of two complex numbers. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं. कैसे? रियल इंटू रियल. तो ये बना रियल इंटू रियल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज द रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज रियल इंटू इमेजिनरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस इंटू साइन एंड प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, दैट इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान दो, दिस इज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो x का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 तो बना प्लस एंड साइन स्क्वायर थीटा. तो सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे यू विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव, कैंसिल्स आउट. तो रियल पार्ट इज 0 प्लस आयोटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये कैंसिल आउट हुआ. तो sin थीटा प्लस sin थीटा इज 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर एक्सपैंड करा, वी विल गेट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा. फर्दर इसको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट 2 iota sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 plus 1 2 minus 2 cos theta and in fact इसको हम further simplify करेंगे तो we will get 2 iota sin theta, denominator में से 2 common, that is 1 minus cos theta, 2 से 2 cancel out हुआ. We can leave the expression as it is or we can further simplify it. कैसे? थीटा में सिचुएशन है तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स हम इसको हाफ दी एंगल्स पे कन्वर्ट कर देते हैं. तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 अगेन कैंसिल्स आउट, एक साइन थीटा बाई 2 कटा. तो फाइनली आपके पास आंसर आया आयोटा cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 विच इज आयोटा cot थीटा बाई 2. बट हमें a प्लस b आयोटा फॉर्म में लिखना है तो दैट इज 0 प्लस आयोटा cot थीटा बाई 2 इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन इज कहता इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज. फ्रेंच रीड करने वाले 17 स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्टडी करने वाले 13 हैं, संस्कृत स्टडी करने वाले 15 हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस स्टडी करने वाले 9 स्टूडेंट्स, इंग्लिश एंड संस्कृत स्टडी करने वाले 4, फ्रेंच एंड संस्कृत वाले 5, इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत स्टडी करने वाले तीनों स्टडी करने वाले 3 स्टूडेंट्स. कहता फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली, French and Sanskrit but not English.
at least one of the three languages, none of the three languages. Since सारा डेटा आपको गिवन है तो हम सीधा वर्किंग करेंगे वेन डायग्राम पे. ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको सेट्स मेंशन करने पड़ेंगे. लेट द स्टूडेंट्स हु रीड इंग्लिश लैंग्वेज बी रिप्रेजेंटेड बाय ई, स्टूडेंट्स हु रीड संस्कृत लैंग्वेज be represented by set S, and students who study French language be represented by set F. तो सारा डेटा आपको गिवन था तो हम वेन डायग्राम पे वर्किंग कर रहे हैं. दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच, दिस इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड दिस इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी संस्कृत. अब देखो फ्रेंच स्टडी करने वाले हैं 17, मतलब इस पूरे में 17. तो कुछ इधर स्टूडेंट्स आएंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे. कितने कहाँ फिल करूं? इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने. तो इट मीन्स इस डेटा का यूज अभी हम नहीं कर पा रहे. सिमिलरली इसका भी यूज नहीं हो पाएगा, इसका भी यूज नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज फ्रेंच एंड इंग्लिश. फ्रेंच ये वाला एंड इंग्लिश दोनों रीड करने वाले ये वाला पार्ट. अब ये है 9, तो 9 में से कुछ इधर आएंगे, कुछ इधर आएंगे. फिर डिसीजन नहीं मिला तो इट मीन इसका भी यूज अभी नहीं हो रहा. सिमिलरली इसका और इसका भी यूज अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे. बट हाँ, तीनों स्टडी करने वाले हैं 3. तीनों स्टडी करने वाले, फ्रेंच भी स्टडी करें, इंग्लिश भी स्टडी करें एंड संस्कृत, तो तीनों रीड करने वाले ये वाला पोर्शन. तो ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है, इसमें है 3 स्टूडेंट्स. चलिए जी नेक्स्ट, फ्रेंच एंड संस्कृत स्टडी करने वाले हैं 5. तो फ्रेंच एंड संस्कृत स्टडी करने वाले ये हैं टोटल 5. तो 5 में से 3 इधर आ गए तो बचे हुए यहां दैट इज 2. तो इस इंफॉर्मेशन का यूज भी हो गया. नेक्स्ट, इंग्लिश एंड संस्कृत स्टडी करने वाले हैं 4. तो इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों स्टडी करने वाले हैं 4. 4 में से 3 इधर आ गए तो बचे हुए दैट इज 1 स्टूडेंट विल बी हियर. आगे बढ़ते हैं. फ्रेंच एंड इंग्लिश स्टडी करने वाले हैं 9. तो फ्रेंच एंड इंग्लिश स्टडी करने वाले 9. तो ये है टोटल फ्रेंच एंड इंग्लिश, जिसमें से 3 इधर आ गए तो रिमेनिंग 6 आएंगे यहां पे. चलिए, संस्कृत स्टडी करने वाले 15. तो संस्कृत स्टडी करने वाले 15, इस पूरे में 15 है, जिसमें से 1 इधर, 3 इधर, 2 इधर, तो 6 तो ऑलरेडी फिल्ड है. तो रिमेनिंग 9 स्टूडेंट्स विल बी हियर. चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश स्टडी करने वाले 13. इस पूरे में 13 है, जिसमें से 6 इधर, 3 इधर, 1 इधर, तो 10 तो ऑलरेडी फिल्ड है. तो जो रिमेनिंग है वो यहां आएंगे, दैट इज 3. फाइनली फ्रेंच स्टडी करने वाले 17. इस पूरे में 17, जिसमें से 2 इधर, 3 इधर, 6 इधर, मीन्स ऑलरेडी 11 स्टूडेंट्स फिल्ड है. तो जो रिमेनिंग है वो आएंगे यहां पे, दैट इज 6. एंड ऑफ कोर्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे? 50. तो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हैं 50. सारा डेटा हमने फिल कर दिया. अब हम 1 बाय 1 आंसर देते जाएंगे. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा फ्रेंच ओनली फ्रेंच रीड करने वाले कौन से हैं? फ्रेंच में ये वाला पार्ट, क्या ये स्टूडेंट्स ओनली फ्रेंच वाले हैं? बिल्कुल ठीक है, ये हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रीड करने वाले. कितने आए? 6. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6. सेकेंड, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश. फ्रेंच एंड संस्कृत वाले ढूंढो, फ्रेंच वाले, संस्कृत वाले. तो ये आ गए फ्रेंच एंड संस्कृत. बट कहता इनमें से हमें वो चाहिए जो इंग्लिश रीड ना करते हो. अगर आप ध्यान दो, ये वाला कौन सा पोर्शन है? फ्रेंच, संस्कृत एंड इंग्लिश वाले. तो ये वाला पार्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, ये हटा दिया. तो ये जो पार्ट बचा दैट इज फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश. कितने हैं इसमें? 2. तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया आपके पास 2. थर्ड पार्ट इज एट लीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस.
means either Sanskrit or English or French or all the three, means at least one of the three languages, means union of all these. तो अगर आपको यूनियन में एलिमेंट्स चाहिए तो आप इन सब एलिमेंट्स को क्या कर दो, ऐड। जैसे ही सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट द आंसर, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस रीड करने वाले। 6 + 6 12 + 3 15 + 2 17 20 21 + 9 दैट इज 30। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर आया 30। एंड फाइनली नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस मीन्स ना फ्रेंच रीड करें, ना इंग्लिश, ना संस्कृत। तो वो स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, इस वाले रीजन में, ये रीजन में। तो अगर आप ध्यान दो टोटल 50 है, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस रीड करने वाले 30 हैं, तो कितने स्टूडेंट्स आएंगे जो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज रीड नहीं करते, मीन्स इस शेडेड रीजन में, दैट इज 50 माइनस ये वाले सारे, दैट इज 50 माइनस 30, you will get the answer 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों में से कोई भी लैंग्वेज रीड नहीं करते। Now the next question is, can I prove that left hand side is equals to right hand side? And prove that वाले questions में we usually start from the left hand side, but टारगेट तक पहुंचने के लिए ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में हर टर्म की पावर 3 है, जबकि टारगेट में पावर नहीं है, तो इट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस द पावर। एंड अगर आप ध्यान दो cos क्यूब वाली टर्म किस रिजल्ट में आती है, cos 3 थीटा वाले रिजल्ट में, एंड दैट इज cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos क्यूब थीटा की वैल्यू इस रिजल्ट में से आपके पास क्या आ जाएगी, cos क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू, ये टर्म इधर जाके ऐड हुई, तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, एंड 4 जो कोएफिशिएंट है इधर आके हुआ डिवाइड। तो cos क्यूब थीटा कैन बी रिटन इन दिस वे। तो अब आ जाओ आप लेफ्ट हैंड साइड पे। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज cos क्यूब a कैन बी रिटन एज 1/4, ध्यान से cos इधर थीटा है तो इधर एंगल का 3 टाइम्स, ये बन गया 1/4 cos एंगल का 3 टाइम्स, दैट इज 3a प्लस 3/4 नेक्स्ट cos थीटा एंगल एज इट इज, दैट इज cos a प्लस अगेन cos क्यूब दिस कंप्लीट इज थीटा, तो इट बिकम्स 1/4 cos 3 थीटा एंगल का 3 टाइम्स, that is 3a plus 360 degree plus 3/4 cos theta as it is a plus 120 degree, and again this term becomes 1/4 cos angle का 3 times, that is 3a minus 360 degree plus 3/4 cos this angle as it is। तो सबसे पहला स्टेप हमने पावर रिड्यूस करी। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखें कोएफिशिएंट 1/4, कोएफिशिएंट 1/4, कोएफिशिएंट 1/4, लाइक टर्म्स क्लब करी 1/4 कॉमन, तो वी विल गेट cos 3a, एंड हियर cos ऑफ 360 डिग्री प्लस 360 में कुछ ऐड करा वापिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन, और 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम, तो यू विल गेट cos 3a एंड प्लस यहां से अगर ध्यान दो तो इस एंगल से माइनस कॉमन निकालते यू विल गेट cos ऑफ माइनस कॉमन 360 डिग्री माइनस 3a, एंड रिमेनिंग टर्म 3/4 कोएफिशिएंट, 3/4 कोएफिशिएंट, 3/4 कोएफिशिएंट, तो 3/4 कॉमन, we will get cos a plus cos of a plus 120 degree, and साथ में ये टर्म आ गई प्लस cos of a minus 120 degree। फर्दर सिंप्लीफाई करा तो we will get 1/4 cos 3a
plus cos 3a and plus cos of minus theta is cos theta. अब ये क्या बना, cos of 360 डिग्री में से कुछ माइनस, 360 में से माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos पॉजिटिव, तो 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल रिमेन सेम. तो वी विल गेट अगेन cos of 3a plus 3 by 4 cos a as it is plus ये सिचुएशन बन गई cos of x plus y plus cos of x minus y and that is 2 cos x into cos y. हाँ जी, तो here we will get 3 times cos 3a, तो finally आया 3 by 4 cos 3a plus 3 by 4 here cos a as it is plus 2 into cos a and 120 degree को I can write as 180 degree minus 60 degree. So you will get cos 180 degree minus 60 degree. 180 में से माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव. So finally we will get 3 by 4 cos 3a plus 3 by 4 cos a plus 2 into cos a and 180 में से माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव, तो here we will get negative sign and 180 पे trigonometric function again remains same, तो cos as it is of 60 degree and cos 60 degree की वैल्यू is 1 by 2. 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, cos है माइनस cos है ये भी आपस में कैंसिल हुआ, तो this term is 0 and finally we get 3 by 4 cos 3a which is equals to the right hand side. Now the next question is, can solve the following system of inequalities graphically. तो देखो inequalities हमें सीधी सीधी स्केच करनी नहीं आती, तो सबसे पहला स्टेप हम इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसीडर कर लेते हैं इक्वालिटी. ये जो स्केच करना आता है हमें कार्टेशियन प्लेन पे, तो साथ में कार्टेशियन प्लेन बनाया. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. हाँ जी, तो अब इस इक्वालिटी को स्केच करने के लिए बेसिकली है लीनियर रिलेशनशिप इन एक्स एंड वाई. बनेगी तो एक लाइन. अब लाइन स्केच करने के लिए या तो आप बनाओ टेबल, बट अगर आप ध्यान दो तो आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस भी आती हैं. तो मैं इस इक्वेशन को इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. फॉर दैट यहां होना चाहिए 1, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 40, तो यू विल गेट x by 8 plus y by 10 equals to 1. It means x intercept is 8. So line will pass through 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0, and y intercept is 10. So means line will pass through 0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 0, 10. तो line will pass through these 2 points and ध्यान से इक्वालिटी है तो लाइन बनेगी डार्क, passing through these 2 points. So this is line 5x plus 4y equals to 40. But हमें तो इनइक्वालिटी स्केच करनी थी. इनइक्वालिटी स्केच करने के लिए इनइक्वालिटी है 5x plus 4y less than equals to 40. इनइक्वालिटी के लिए आप एक पॉइंट कंसीडर करो नाइस, जो इस लाइन पे लाई नहीं करता. इस लाइन को छोड़ के कोई भी नाइस पॉइंट नजर आ रहा है 0, 0, तो आप एक काम करो, x को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट करो, less than equals to 40. So this is basically 0 less than equal to 40, which is satisfying the inequality. तो it means रीजन कौन सा होगा, इस लाइन के नीचे वाला, जहां ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इट मींस दिस इज द रीजन, इस लाइन के नीचे वाला सारा. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3.
तो आप फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी कंसिडर करो. दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 3,0. 1 2 3 3,0 से पास करती हुई पैरेलल टू y एक्सिस. अगेन इक्वालिटी है तो लाइन विल बी डार्क. ये आ गई आपके पास x इक्वल्स टू 3. इनइक्वालिटी के लिए सीधा नजर आ रहा है आपको कैसे चाहिए. वो सारे x जो 3 या 3 से बड़े हैं, तो 3 या 3 से बड़े x कहां लाई करेंगे? इस लाइन के राइट साइड पे. तो इस लाइन के राइट पे रहने आपको. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो आप पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी कंसीडर करो. दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0,2. तो अगेन ध्यान से इक्वालिटी है तो लाइन विल बी डार्क. दिस इज y इक्वल्स टू 2. तो आपको वो सारे पॉइंट चाहिए जिनमें y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस लाइन के ऊपर मिलेगा. तो फाइनली तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ रीजन कौन सा बना? इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के राइट पे एंड इस लाइन के ऊपर. दैट इज दिस रीजन. सो दिस इज द फाइनल आंसर. Let S be the sum, P be the product, and R be the sum of the reciprocals of n terms in a GP. Prove that left hand side is equals to right hand side. देखो, सम की बात हुई, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की बात हुई, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स की बात भी हुई, बट इन अ GP. तो let us consider in general a GP whose first term is A and common ratio is R. So A, AR, AR square, AR cube and so on. Nth term, क्योंकि n टर्म की बात हुई तो nth टर्म इज AR raised to power n minus 1. अब देखो sum of n terms की बात हुई and we know the result of sum of n terms of a GP, that is A into common ratio R raised to power number of terms minus 1 upon R minus 1. This is sum to n terms of a GP. अब P be the product of n terms. तो अगर हम P की बात करें तो इन सारी टर्म्स का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो A into A into A into A into A, A मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स बिकॉज n टर्म्स हैं, तो यू विल गेट A raised to the power n. एंड अगेन जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे अगेन R स्क्वायर R क्यूब एंड सो ऑन R raised to power n minus 1. बेसिस सेम है, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाएंगी, तो यू गेट R raised to power 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1. And again this is sum of first n minus 1 natural numbers. तो जैसे ही सबको ऐड करोगे यू विल गेट A raised to power n, R raised to power n minus 1 into n by 2. So this is the product P. And finally he says R be the sum of the reciprocals of n terms in a GP. तो इन सबके reciprocals will be 1 by A, 1 by AR, 1 by AR square, 1 by AR cube and so on 1 by AR raised to power n minus 1. तो अगर आप ध्यान दो ये जो नई सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म इज 1 by A, सेकेंड इज 1 by AR, 1 by AR square. दिस इज अगेन अ GP जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 by A एंड कॉमन रेशियो इज 1 by R. वो आप चेक कर सकते हो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, fourth term by third term. In each and every case common ratio is 1 by R. तो R था sum of reciprocals of n terms, तो R will be इन सबका sum, again sum of n terms of a GP. First term is 1 by A, common ratio 1 by R raised to power number of terms minus 1 upon 1 by R minus 1.
जेड क्लियर? तो x भी है, p भी है, कैपिटल R भी है। अब हम चलते हैं टारगेट पे। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज p स्क्वायर इंटू r रेज़ टू पावर n। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं। p स्क्वायर मींस इस पूरे का स्क्वायर, तो वी विल गेट इसका स्क्वायर दैट इज a रेज़ टू द पावर 2n एंड इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे पावर्स मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कटा, वी विल गेट r रेज़ टू पावर n into n minus 1। so this is p square and now we have to find r raised to the power n। so this complete raised to the power n into 1 by a into 1 upon r raised to power n minus 1 upon 1 by r minus 1 इस पूरे की पावर n। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी विल गेट a रेज़ टू पावर 2n r रेज़ टू पावर n into n minus 1 into ब्रैकेट के अंदर 1 by a, एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 1 minus r रेज़ टू पावर n अपॉन r रेज़ टू पावर n। यहां एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 1 minus r अपॉन r एंड ध्यान से न्यूमरेटर को डिवाइड करा इससे, ये टर्म रेसिप्रोकेट भी होगी, तो r अपॉन 1 minus r होल रेज़ टू द पावर n। अब ध्यान से होल पावर n, तो इसकी पावर भी n, a रेज़ टू पावर 2n r रेज़ टू पावर n into n minus 1 1 upon a रेज़ टू पावर n into इस न्यूमरेटर की पावर भी n अपॉन डिनोमिनेटर की पावर भी n। और ध्यान से r रेज़ टू पावर n की पावर n, तो पावर मल्टीप्लाई हुई, यू विल गेट r रेज़ टू पावर n स्क्वायर into इसकी पावर भी n एंड डिनोमिनेटर में 1 minus r की पावर भी n। तो अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट a रेज़ टू पावर n गेट्स कैंसल्ड आउट, तो यहां बचेगा a रेज़ टू पावर n। क्लियर? अब देखो न्यूमरेटर में r बेस और इधर भी बेस r, तो ये पावर्स ऐड होंगी, तो वी विल गेट a रेज़ टू पावर n इंटू बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगी n इंटू n माइनस 1 और साथ में प्लस n इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n होल पावर n डिवाइडेड बाय r रेज़ टू पावर n स्क्वायर और साथ में है 1 माइनस r होल पावर n। नजर आ रहा है ये पावर सिंप्लीफाई करोगे तो इस पूरी टर्म में से और इस टर्म में से n जाएगा कॉमन। काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है तो सिंप्लीफाई करते जाओ, n कॉमन निकला, यू विल गेट n minus 1 और इधर से प्लस 1 इंटू 1 minus r रेज़ टू पावर n होल पावर n अपॉन r रेज़ टू पावर n स्क्वायर 1 minus r होल पावर n। तो ये -1 प्लस 1 कैंसल्स आउट, n इंटू n विल बी n स्क्वायर, तो r पावर n स्क्वायर ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हुई, तो यू विल गेट a रेज़ टू पावर n इस ब्रैकेट की पावर n, इस ब्रैकेट की पावर भी n, तो आई कैन राइट दिस एज 1 minus r रेज़ टू पावर n अपॉन 1 minus r होल रेज़ टू द पावर n। तो अगर आप ध्यान दो टारगेट क्या था, ये तो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, टारगेट इज हमें चाहिए s की पावर n, s की पावर n मतलब a रेज़ टू पावर n एंड इस पूरे की पावर n, और ये टर्म जनरेट भी हो गई, a रेज़ टू पावर n भी है इस पूरे की पावर n, तो r रेज़ टू पावर n पहले -1, तो एक काम करो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लो, तो r रेज़ टू पावर n -1, डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लो, r -1 होल पावर n, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली ये जो क्वांटिटी है किसके बराबर आ गई, s रेज़ टू द पावर n एंड विच इज योर राइट हैंड साइड। Now the next question is find the image of this point with respect to the line mirrors this। मीन्स ये सिचुएशन कैसी है, सबसे पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। We are given a line whose equation is 4x plus 7y plus 13 equals to 0 and we are given this point, say we name it as A, coordinates है -8, 12। We are interested in finding image of this point in this line mirror। Image means
पहले तो यहां से ड्रॉप करा परपेंडिकुलर, ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ, दिस इज इमेज, दिस पॉइंट इज इमेज ऑफ ए इन दिस लाइन मिरर। So let we name it as B and this point as C. तो मैंने बोला ध्यान से AC and उतना डिस्टेंस नीचे, तो means these two distances are equal. So this is the situation and हमें B point के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब हम सोचते हैं कैसे पहुंचे यहां तक। देखो B के कोऑर्डिनेट्स हम सीधा सीधा फाइंड नहीं कर सकते, तो B के कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं मिल रहे तो लेट अस ट्राई टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। क्यों? बिकॉज C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर C के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो भी हम B के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। अब ध्यान दो C पॉइंट है क्या? C पॉइंट है इस लाइन एंड ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इजीली मिल जाता है बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। तो इट मींस इस लाइन की इक्वेशन तो आपके पास है, आपको इस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। एंड लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए वी नीड टू थिंग्स, वन इज पॉइंट ऑन द लाइन एंड स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर आप ध्यान दो इस लाइन पे पॉइंट ये नजर आ रहा है, और क्या चाहिए मेरे को? इसकी स्लोप। नाउ हाउ टू फाइंड द स्लोप? देखो टारगेट चेंज हुआ, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन? फॉर दैट वी नो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर perpendicular to each other. If lines are perpendicular, then product of their slopes is -1. तो हमें इस लाइन की स्लोप पता है, कैसे? इक्वेशन पता है। Slope of this line is minus coefficient of x upon coefficient of y. And since this line is perpendicular to this line, तो इसकी स्लोप अगर मैं m1 मान लूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1। From there we can find slope of this line. ये आ जाएगी आपके पास 7/4। स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता है हमें लाइन पे, वी कैन इजीली राइट इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB विल बी y minus y1 equals to slope of the line 7/4 into x minus x1 that is -8, तो ये आ गया +8 and of course cross multiply करोगे you will get 4y minus 48 equals to 7x plus 7 into 8 56। सारी टर्म्स आप ले जाओ एक साइड पे, you will get 7x minus 4y और ये 48 इधर जाके ऐड हुआ तो we will get 104। तो this is equation of line AB। AB की इक्वेशन आ गई, गिवन लाइन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है। Now solve these two equations simultaneously to get coordinates of C। तो हम x के कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करा 28x प्लस 49y प्लस 91 इक्वल्स टू 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा we will get 28x माइनस 16y एंड साथ में आ गया 4 से मल्टीप्लाई करते 6 1 and 4 equals to 0। Now subtract these two equations। 28x कैंसिल हुआ, इन दोनों को ऐड करते we will get 65y एंड जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे 416 91 डिफरेंस 325 विद नेगेटिव साइन इक्वल्स टू 0। तो यहां से कांस्टेंट की साइड चेंज करो we will get y as 5। So it means C point का y coordinate है 5। Now in order to find x coordinate आप एक काम करो, ये y coordinate क्योंकि पॉइंट C लाई कर रहा है लाइन पे तो आप इसका y coordinate पुट कर दो यहाँ पे। So we will get 4x plus 7 into y की जगह रखा 5 plus 13
इक्वल्स टू 0। सिंस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट्स वाई हमने y की जगह 5 पुट करा। तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके 4x 35 प्लस 13 48, साइड चेंज करोगे यू विल गेट -48, तो x आ गया -12। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -12। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ वी कैन इजीली फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। लेट दिस बी P, Q। तो P फाइंड करना है, ध्यान से मिड पॉइंट है C, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला माइंड में आया। तो इट मींस दिस प्लस दिस -8 प्लस P by 2 will be equals to मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -12 एंड सिमिलरली y1 plus y2 by 2 that is 12 plus q by 2 is equals to मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट that is 5। ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ -24, ये -8 जाके ऐड हुआ तो p की वैल्यू आ गई आपके पास -16। तो p की वैल्यू आ गई -16 एंड सिमिलरली ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 12 प्लस q इक्वल्स टू 10, तो q की वैल्यू आ गई -2 एंड फाइनली ये आ गए आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स। दिस द डिस्कशन ऑफ paper is complete. I hope you enjoyed this discussion. So for further updates, please subscribe the channel and please like this video and share this with your friends.